I am Susan Neiman. I'm a professor of कर लेगी मंदू philosophy and सो director of the Einstein Forum, and I am honored and excited to welcome you to visit us today. I wish I could be welcoming you to Albert Einstein's house, which we are the caretakers of. It नमस्कार is a beautiful, small, and very simple place, and I'm sure you would enjoy its spirit very much. Unfortunately, we are stuck in cyberspace. And so rather than welcoming you to Einstein's house, I wanted to read you something that Einstein himself wrote. The individual feels the futility of human desires and aims and the sublimity and marvelous order which reveal themselves both in nature and in the world of thought. The religious feeling already appears at an early stage of development in many of the Psalms of David and many of the prophets. In the Hebrew tradition, Buddhism contains a much stronger element of this. So this is Albert Einstein recognizing the connections अब between समय both science and religion and our different religions. The Einstein Forum was founded 27 years ago in order to recreate the kinds of intense but informal conversations that Albert Einstein held in that house, तो not only जो about science, जो कि but आज जो about अल्बर्ट philosophy आइंस्टाइन and religion, फोरम के द्वारा का आयोजन about कार्यक्रम का politics आयोजन and किया जा social रहा है justice. We try to continue that tradition, and we have several members of our boards here with us today, as well as several former members, fellows, young fellows who are invited to live for a period in Einstein's house and do their research. One of them, Shyam Wupaluri from Mumbai, has very kindly worked to organize this meeting. And another, Amber Carpenter, who is a professor of Buddhist and Greek philosophy तो यहाँ पर जो at आज के Yale NUS मेहमान College हैं in उनका परिचय Singapore, is also with us and has done so much to organize और this उन्होंने meeting इस today. आज का जो So I am going कार्यक्रम to है ask उसको Amber ऑर्गेनाइज to करने के लिए moderate the बहुत बहुत rest धन्यवाद of देता हूँ our तो conversation and एम्बर्स हैं questions. जो And thank you मॉडरेटर का once काम again for करेंगे offering एम्बर to deliver a कारपेंटर lecture on Buddhism, science, and तो compassion. जो बुद्धिज़्म साइंस और कंपैशन बौद्ध Thank you. करुणा और विज्ञान विषय जो आज का है उस पर बातचीत करेंगे I remember very clearly your small country, तो मैं Latvia, Lithuania. आपके जो देश है एस्टोनिया लिटविया भली बात उससे मैं परिचित हूँ Oh. That day, I remember, firstly, I think I was in Sweden. तो Sweden. उस समय मैं स्वीडन में था Short stop फिर Finland, फिर फिनलैंड में थोड़ी देर के लिए रुका to Estonia. फिर उसके बाद एस्टोनिया गया Beautiful, small country. तो छोटा देश है और बहुत ही अच्छा सुंदर देश है Although these Latvia, Lithuania, Estonia, तो लाटविया एस्टोनिया Republic, और लातविया ये भले ही छोटे ही एक रिपब्लिक हैं लेकिन बहुत ही अच्छे जो राज्य हैं स्टेट हैं so because it's a small country, but atmosphere is तो जो पर्यावरण है बहुत ही अच्छा है छोटा देश है लेकिन पर्यावरण बहुत ही सुंदर है खुशहाल है mainly Russians. तो फिर उसके बाद खास करके वहाँ प्रवचन हुए तो लतविया में जो धर्म प्रवचन के आयोजन वहाँ पर हमारे हुए हैं Now, today, you see, not physical touch. तो आज हम लोग भले ही शारीरिक रूप से न मिल रहे हों लेकिन टेलीविज़न के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को देख रहे हैं एक दूसरे को सुन रहे हैं
and we can discuss. और इसके साथ साथ हम चर्चा कर सकते हैं, वार्ता कर So now सकते the हैं। subject तो आज का जो विषय है, जो भगवान, जो Einstein, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म और करुणा और विज्ञान जो विषय है, Buddhism, science, and compassion. बौद्ध धर्म, विज्ञान और करुणा जो आज का विषय है, उस पर चर्चा Now होगी। compassion is all religion carry the message of compassion. तो हर धर्म Because जो परंपरा है वो करुणा का संदेश देते हैं। all religion, you see, emphasis warm-heartedness और सभी धर्म परंपराएं and then tolerance. दयालुता की बात करते हैं, सहिष्णुता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, संतोष की बात करते हैं, और आत्म जो संयम है, Is common. विनय है, उसके बारे में बात करते हैं। और ये सभी धर्म परंपराओं के लिए समान रूप से हैं। Most of the religion believe creator. और Then आज की जो परंपरा हैं उनमें से ज़्यादातर creator. जो कर्ता को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और कहते हैं कि वो हमारे एक प्रकार से पिता के समान हैं, और उनमें अनंत प्रेम स्नेह होता है, जीवधारियों के प्रति अनंत प्रेम स्नेह होता है। If you think seriously, अगर आप अच्छी तरह से सोचोगे, creator, अगर आप कर्ता के बारे में इस विचारधारा को अच्छी तरह से सोचोगे, तो जितने भी जीवधारी हैं वो हमारे भाई बहन हैं, हम सभी उस ईश्वर के so all religion, पुत्र हैं, ऐसा समझना चाहिए। those theistic religion, see the concept of God, of creator, you see, automatically, you see, develop belief. We all human beings on this planet are brothers, sisters. और यही बात माननी भी चाहिए कि जो भी हम जो प्राणी हैं इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, एक ही जो पिता हैं या ईश्वर हैं, उनकी संतान हैं, Religion. ऐसा मानना चाहिए जो ईश्वर को मानते हैं। India, और जो अनीश्वरवादी हैं, जो कि ईश्वर को नहीं मानते, कर्ता को नहीं मानते हैं, I believe creation of human being. तो जैसे कि मैं यही मानता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं आज अपने कर्म फल से हैं, और उनमें से जो मनुष्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसमें से भी जो मनुष्य की प्रेम और करुणा का जो संदेश वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। We are social animal. और So biologically, आज के समय में वैज्ञानिक लोग भी कहने लगे हैं कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, और जो सामाजिक प्राणी होता है उसकी अपने समुदाय के प्रति एक सोच रहती है, एक चिंता रहती है। own community. तो इसलिए आपको जो आपके समुदाय है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, और इसकी वजह भी है क्योंकि आपका जो जीवन है वो समुदाय पर निर्भर करता है, और बिना समुदाय पर निर्भर रहे एक कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। ऐसा नहीं, मनुष्य ही नहीं है, जानवरों को भी देखो तो वो भी नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, Survival और हर दूसरे का जो जीवन है और वो समाज पर निर्भर करता है, समुदाय पर निर्भर करता है। community is actually the best way to तो इसलिए हमारे जो समुदाय है उसको हमें रखरखाव करना चाहिए, और रखरखाव करने का मतलब अपने हित के लिए होता है, चाहे ईश्वरवादी परंपरा के हों या अनिश्वरवादी परंपरा के हों, जो भी परंपरा को मानते हों, जो भी पंथ को मानते हों, message. तो उनका मुख्य जो संदेश है वो होता है प्रेम का, करुणा का संदेश होता है। Today, number of scientists तो आज के समय में बहुत सारे वैज्ञानिक लोग जो हैं वो ऐसा मानने लगे हैं कि जो inner peace. जो हमारी आंतरिक सुख शांति है, Scientists from West
और जो पूर्व के sort of idea जो वैज्ञानिक लोग थे, पाश्चात्य जो वैज्ञानिक लोग थे, तो वो हमारे जो आंतरिक जो शांति है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज के समय के आधुनिक जो वैज्ञानिक लोग हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। जो हमारी मन की जो शांति है, चित्त की जो शांति है, उसको एक प्रकार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। firstly we should know और सबसे पहले peace of mind जो हमारे मन की जो शांति है उसको कौन नष्ट करता है? ये कोई बाहरी शत्रु नहीं है, ये जबकि हमारे आंतरिक जो शत्रु हैं। I think we can say internal sort of enemy तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे जो आंतरिक जो शत्रु है वो हमारी मानसिक शांति को नष्ट करता है। तो इस शत्रु को हम एक प्रकार से क्रोध कह सकते हैं, क्रोध कह सकते हैं कि जैसे ही हमारे अंदर जब क्रोध उत्पन्न होता है तो वैसे ही हमारे मन की शांति एक प्रकार से नष्ट हो जाती है, गायब हो जाती है। antidote of the so anger और जहाँ तक क्रोध की अगर प्रतिपक्ष की बात करें तो वो प्रेम होता है और दूसरों के हित के बारे में सोचना। then automatically और जब आप दूसरों के हित के बारे में सोचोगे तो आपके जो आपके जो अंदर you respect जो सम्मान की भावना है, दूसरे के सम्मान की भावना पैदा होगी, दूसरों के firstly हित की भावना पैदा होगी। तो सब क्योंकि हम सभी लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य और हम एक 1,000 years और भारत की जो हजारों वर्ष प्राचीन जो परंपरा है, अहिंसा है, not only towards human तो ये केवल मनुष्यों के लिए हित के लिए ऐसी बात नहीं है। ये जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी सत्व हैं, उन सब के लिए ये कारगर होती है। क्योंकि भारत में कहते हैं कि कोई भी जीव जंतु हो उसकी हमें हिंसा नहीं करनी है, उससे विरत रहना है। karuna और वो तभी संभव हो सकता है जब उसके साथ करुणा जुड़ी हुई हो। so now the scientists also now begin to realize the peace of mind is और very important. तो वैज्ञानिक लोग भी शोधों के अनुसार मानने लगे हैं कि जो हमारे मन की जो सुख शांति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। Peaceful community, sense of concern of our community is the key factor. तो जहाँ तक एक प्रकार से जो समुदाय है उसका ध्यान रखना हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। And compassion. तो जो आपने जो विषय चुना है कि विज्ञान, बौद्ध धर्म और करुणा, As I mentioned earlier, तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि जो विज्ञान है realize peace of mind. वो वही एक प्रकार से हमारे जो मन की शांति है उसके बारे में विचार करने लगे हैं। और जो अच्छा हृदय, सहृदय बनना चाहिए उसके बारे में विचार करने लगे हैं। As I और mentioned, जो हमारे बौद्ध परंपरा है importance of warm heart. वो तो हमेशा इसमें कहा जाता है करुणा के बारे में, सदहृदय के बारे में बात करते हैं। You see, in order to develop peace of mind, और बौद्ध धर्म के अनुसार अगर आप करुणा को उत्पन्न करना चाहते हैं और अगर आप शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो केवल विश्वास से, श्रद्धा से नहीं आएगी। और तथागत बुद्ध ने भी खुद कहा है कि वो मेरे भिक्षुओं, अनुयायियों, भिक्षुड़ियों, उपासक उपासिकाओं, not accept तो मेरे जो शिक्षा है, प्रवचन है, उनको श्रद्धावश नहीं मानना है। मेरी शिक्षाओं को आपको एक प्रकार से कसौटी पर खरा उतार करके ही उसको मानने की ज़रूरत है। तो तथागत बुद्ध ने ऐसा हमसे कहा है, जो बुद्ध के अनुयायी हैं उनसे ऐसा कहा है। तो भारत में ये also in Tibet later. लगभग 2500 वर्ष पहले से ये व्यवस्था है और तिब्बत में भी 8वीं शताब्दी से ये व्यवस्था चली आ रही है। Listening. तो हम लोग भी वहाँ तर्क एक करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। Ancient Indian tradition तो इसलिए जो प्राचीन भारतीय विद्या जिसमें जो प्रमाण है approach. वो उसमें एक लॉजिकल विचार होता है। So that, you see, raise a lot of question, then investigate तो इससे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं reasoning. और फिर आपके जो
एक तर्क के द्वारा उसका परीक्षण करते हैं। ऐसा नहीं है कि श्रद्धा अनुसार करते हों। which Buddha used to taught according different तो भगवान बुद्ध के ही वचन different group. तो लोगों ने भगवान बुद्ध ने ही लोगों को उसी प्रकार से पढ़ाया जैसे लोगों की सोच थी। तो We cannot say लोग अलग अलग उनके जो विचारधारा के थे उनको उपदेश दिए हैं। Vedic तो ऐसा हमें नहीं कहना है कि बुद्ध ने कहा है कि इसलिए हमें इसको मान लेना है। उनको आप अच्छी तरह से अपने बुद्धि पर खरा उतारो, समझो। तो जो प्राचीन भारतीय विद्या है, नालंदा की जो परंपरा है, जब उसको हम परीक्षण करते हैं, जब कुछ विरोधाभास को अगर कोई विरोधाभास आते हैं तो उसको परीक्षण करना चाहिए। तथागत बुद्ध के वचनों में भी अगर आपको कहीं गड़बड़ लगे तो उसका आपको परीक्षण करना चाहिए। usually we say Longsu Pusa. तो नागार्जुन को जैसे चीनी भाषा में लोंगसू फूसा कहते हैं, तो वो नालंदा के बहुत बड़े चिंतक थे, आध्यात्मिक थे, दार्शनिक थे। तो उन्होंने कुछ भगवान बुद्ध के वचनों में भी कहा है कि ये कुछ वचन हैं Those words we cannot accept. कि कुछ तो जो वचन है उनको तो हमें मानते ही, लेकिन कुछ वचन ऐसे हैं जहाँ पर समझ पाना उचित नहीं हो पड़ता है, तो उसके लिए एक तर्क की आवश्यकता होती है। Particularly Nalanda tradition. तो जहाँ तक बौद्ध धर्म की मैं बात करूँ और इसमें से भी अगर नालंदा परंपरा की बात करूँ तो उसमें ज़्यादातर जो कि तर्क की बातें की गई हैं, एक प्रकार से प्रमाण के तौर पर उनकी बातें की गई हैं। So since 8th century, तो 8वीं शताब्दी से लेकर के emperor, जो कि तिब्बती although राजा you see the influence Buddhism in Tibet, और जब से तिब्बत में China, जो कि तिब्बत में धर्म फैला और 7वीं शताब्दी से चीन से भी वहाँ पर बौद्ध धर्म गया और कुछ बहुत ही भगवान बुद्ध की जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिमा थी वो चीन से very closely तिब्बत में गए। तो हमारे बौद्ध धर्म के अनुसार देखा जाए तो बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। Shisung Tezen. तो 8वीं शताब्दी में तिब्बती राजा ठिसिंग देशेन तो उन्होंने उचित समझा कि जो नालंदा के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, उनको तिब्बत में बुलाया जाए। Chandarakshita, तो जैसे कि शांतिरक्षित, he great philosopher, तो वो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे logician, और बहुत ही प्रमाणिक जो कि logic about philosophy. तो उनके वचनों को अगर देखें तो बहुत सारी रचनाएं की हैं, हम उनको अभी भी पढ़ते हैं। और उन्होंने ये तिब्बत में एक प्रकार से जो नालंदा की परंपरा क्या है उसका वहाँ पर एक प्रकार से शुरुआत की। Education. तो हम लोग ज़्यादातर एक प्रकार से प्रमाण का उपयोग करते हैं। So like Indian great logician like Dignac, उसके अलावा भारत के जो दिगनाक को देख लीजिए, धर्म कीर्ति को देखें, their text we have not only translation, तो उनके जो ग्रंथ हैं उनका केवल हमने अनुवाद किया ऐसी बात नहीं है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, हम बचपन से पढ़ते हैं। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं कि मैं 6-7 वर्ष का था तभी से मैंने उसका अध्ययन करना शुरू किया, डिबेट करना शुरू किया, शास्त्रार्थ करना शुरू किया। so now we Tibetan since Chandarakshita you see introduce Buddhism, तो हम लोगों को जब से आचार्य शांतिरक्षित ने नालंदा परंपरा को परिचय जब से कराया तब से हम तिब्बती लोग पिछले हजारों वर्षों से 1200-1300 वर्षों से तो हम लोग एक जो प्रमाण के तरीके से अध्ययन किया जाता है उसका हम अध्ययन करते हैं। a number of scientists तो आज के बहुत सारे जो वैज्ञानिक लोग हैं तो वो लोग भी जब हम लोग चर्चा करते हैं, जब हम मन की बात करते हैं, चित्त की बात करते हैं और पदार्थों की बात करते हैं, quantum physics जैसे कि आप क्वांटम फिजिक्स का कह लीजिए, जब इसकी हम चर्चा करते हैं talk when we discuss about these things, then तो उस समय जो वैज्ञानिक लोग हैं वो काफ़ी वैज्ञानिक लोग हैं, वो इसमें रुचि दिखाते हैं deep appreciation. और रुचि नहीं और प्रशंसा भी करते हैं। So my own sort of experience, और मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ I discuss और उनके साथ पिछले कई दशकों से मैं वार्ता करता हूँ, संवाद करता हूँ और अलग अलग क्षेत्रों में उनसे वार्ता करता आया हूँ। quantum तो physics जैसे कि क्वांटम फिजिक्स की हो या फिर about mind, जो हमारे जो चित्त है, भावनाएं हैं,
और इनको कैसे समझना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने मैं जो हूँ संवाद करते आया हूँ। unique thing. तो ये एक बहुत ही अच्छी बात बन जाती है। और नालंदा जो की परंपरा है उसके साथ ये बहुत अच्छी बात है, Logical. क्योंकि वहाँ पर जो हमारे प्रामाणिक तरीका है उसका उपयोग किया गया है। Or, as I mentioned earlier, ultimately, you see, religion, you see, in a way, we can say, तो creation of human being तो हम लोग कह सकते हैं जो भी धर्म हैं वो मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं, is compassion, karuna. और इनका जो संदेश है वो करुणा है। Now today, on this planet, तो आज के इस पृथ्वी पर आप देखें जो क्रोध जो है, ईर्ष्या है, घृणा, भय, I think really create और ये वास्तव में इनके द्वारा बहुत ज़्यादा समस्याओं को उत्पन्न किया गया है, इन्हीं के द्वारा समस्याएं पैदा हुई हैं। nuclear weapons. तो आप देखिए कि यहाँ तक परमाणु हथियार बनाने की भी नौबत आ गई है। इससे Ultimately, शांति भंग होती है। too much anger. ये हमारे मन के द्वारा हुआ। हम लोग इतना ज़्यादा भयभीत हैं, क्रोधित हैं, इसकी वजह से ये सब बने हैं Maximum way, और हम लोगों ने निर्मित किए हैं। destroyer. और कोशिश यही किया है कि मानव एक प्रकार से जो भी औजार हैं, हथियार हैं, वो मानवता को नष्ट करते हैं। Everywhere, तो आज के समय में आप देखें कि विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि जो परमाणु औजार बने, हथियार बने हैं वो नष्ट हों, उनका उपयोग न हो। they demilitarized और हम लोगों को यही कोशिश भी यही करना चाहिए कि जो इतनी बड़ी मिलिट्री बनी हुई है, सेना है, उसकी इतनी भी आवश्यकता नहीं है। religion, we all brothers, sisters. और चाहे And non-theistic religion, जो धार्मिक जो कि आस्तिक हों या नास्तिक हों, ईश्वरवादी हों अनिश्वरवादी हों, वो सभी कहते हैं हम भाई बहन हैं, हम सभी एक दूसरे के मित्र हैं। तो इन सभी का उद्देश्य यही होता है कि एकता होनी चाहिए। जो 7 अरब के आसपास लोग हैं उनमें एकता हो। all religion carrying message of compassion, loving kindness. तो सारे के सारे धर्म करुणा का संदेश देते हैं। और इसके अलावा जो वैज्ञानिक क्षेत्र से भी जो लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो भी अब मानने लगे हैं कि प्रेम और करुणा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा है, एक अच्छे परिवार के लिए, एक सुखद परिवार के लिए इनकी आवश्यकता है। And then, of course, now today, everywhere, people, you see, showing तो आज आप देखें कि विश्व में हर लोग कहते हैं कि उनको विश्व शांति की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है। तो हमें सोचने की ज़रूरत है, गहराई से सोचने की आवश्यकता है peace of mind. कि बिना मन की शांति के आप विश्व शांति लाना चाहें तो वो संभव नहीं है, असंभव है। Inner peace, not thinking anything. No, think. तो आंतरिक शांति का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप और किसी के बारे में ना सोचें। एक आपको सच्चाई के रूप में, अच्छाई के रूप में, सच्चे तरीके से सोचने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर का जो क्रोध है वो कम हो, क्योंकि हमें मानव समाज में रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है, जीना है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि पहले आंतरिक सुख शांति आए, फिर जब खुद के अंदर जब सुख शांति होगी तो जितने भी जो मानव की गतिविधियां हैं वो सुखमय होंगी, सकारात्मक होंगी, रचनात्मक होंगी। Now questions. इसके बाद प्रश्नोत्तर We can discuss. तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं इस पर। Thank you very much, Your Holiness. तो परम पावन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Time and attention. और जो आपने जो कहा है आज, जो वक्तव्य दिया उसके लिए बहुत बहुत Our धन्यवाद। first question तो हमारा जो from पहले Susan Nyman, the director of सुसान नायमन जो आइंस्टाइन फोरम की जो डायरेक्टर हैं, तो उनका प्रश्न है। Your Holiness, I think and worry about truth and beauty. Beauty is something that seems crucial for तो आज विश्व में एक प्रकार के शांति और सुंदरता, the inner peace.
इनके बारे में बातें करते हैं। just to find. Yet some philosophers in my tradition तो मेरे कुछ दोस्त हैं या मेरे परंपरा में कहते हैं कि truths that are very often worse than ugly. Jean-Jacques Rousseau described the arts as weaving garlands of flowers around the chain. तो मेरा प्रश्न यही है कि And जहाँ पर जो अभी जो विश्व है जहाँ पर बहुत समस्याएं हैं, तो हम after Auschwitz, जो वास्तविक जो सत्य और जो सुंदरता है इन दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं। world of great suffering, how can we reconcile truth and beauty? In the past, we human beings say not much pay attention about our internal peace. तो जो अगर आप अतीत की बात करें तो अतीत में लोग आंतरिक सुख के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। If we consider, if you pay more attention about compassion, अगर आप करुणा के बारे में अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, we are same तो brothers, आप देख sisters, सकते as I हैं mentioned. कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जो भी मनुष्य हमारे भाई बहन हैं, Through इसके education, बारे में मैंने पहले भी कहा है। तो ये जो विचार है वो शिक्षा के द्वारा आ सकता है, शिक्षा के द्वारा उसका प्रोत्साहन किया जा सकता real है। source of inner peace. With और यही inner peace, जो we कि can आंतरिक develop सुख peaceful शांति होती society, है। peaceful nation, और जब हमारा मन शांत होगा तो अपने सुखद परिवार को हम निर्माण कर सकते हैं, समाज का कर सकते हैं, देश का कर सकते हैं, विश्व का कर सकते हैं। expressing तो आजकल मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार से हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, इसके बारे में ध्यान देते हैं, more important तो उससे कहीं ज़्यादा हमारे जो भावनाएं हैं उसके स्वास्थ्य के बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। these emotions जैसे कि करुणा, जो कि क्रोध, भय, अहंकार, इनको हमें कम करने की आवश्यकता है। the counterforce of anger, fear is more compassionate mind. तो जब आपके अंदर क्रोध हो, भय हो, तो उस समय जितनी ज़्यादा आपके अंदर करुणा होगी तो ये क्रोध और भय कम हो जाएंगे, नष्ट होंगे। We need the hygiene of emotion. तो इसलिए जो हमारी भावनाएं हैं उनको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इनको ठीक करने के लिए अगर तो उसके लिए तरीके हैं, The people who practice these things, तो इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। जो आप लोगों को देखिए जो इनका अभ्यास करते हैं, तो उनके अंदर यही क्षमता है कि जब उनके कोई जैसी मुसीबत जब हो तब उससे सामना कर सकते हैं। Chinese gulag. तो कुछ तिब्बती जो हमारे भिक्षु हैं जो चीनी जेल में रहे हैं, कई वर्षों तक चीनी जेल में रहे हैं। So he 18 years in Chinese तो gulag. जब वो 18 वर्ष तक चीनी जेल में रहे, But eventually he have the opportunity to come to फिर here. उसके बाद जब छूटने के बाद, रिहा होने के बाद जब वो Since मेरे I पास know आए, him, तो मैं उनको बहुत पहले से जानता था। we just was a casual talk. तो हम लोग सामान्य बात करते थे, उनसे एक मित्रवत बात करता था। 18 years in तो Chinese उसने कहा, मैंने उनसे पूछा कि 18 वर्ष तक जब आप चीनी में वर्ष में रहे तो कैसा रहा? तो उन्होंने कहा कि कुछ समय पर मुझे खतरा लगा, तो मुझे लगा कि शायद जीवन का खतरा होगा। answer is तो उनसे पूछा कि आपको क्या खतरा था? तो उन्होंने कहा कि मेरी करुणा न छूट जाए, चीनियों के प्रति जो मेरी करुणा है वो कहीं न छूट जाए, इसका मुझे खतरा था। तो देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। of compassion is very important. तो इसलिए जो करुणा का अभ्यास वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। That person's mind तो इसलिए उसका परिणाम क्या हुआ? जेल में 18 वर्ष तक जेल में रहने के बाद भी उनका मन बहुत ही सुखमय था, शांत था। hygiene of emotion. तो इससे ही कह सकते हैं कि एक प्रकार के जो हमारे भावनाओं के जो स्वास्थ्य है, भावनाओं की अच्छाई, उनको हमें बढ़ाना चाहिए, अच्छी भावना बनानी चाहिए। Now say basically we are more compassionate. तो वैज्ञानिक लोग भी अक्सर अब कहने लगे हैं कि हमारी जो आदत है वो ज़्यादातर करुणामयी होती है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को शिक्षित करो, बच्चों को आप शिक्षा दो।
at young age, तो बच्चों को आप देखिए, जब वो छोटे होते हैं तब वो कभी उनके अंदर ये मन नहीं होता है कि उनकी जाति क्या है, उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, राष्ट्रीयता क्या है। and play तो together, वो केवल अपने मुस्कुराते हैं, a strong feeling of खेलते हैं, brotherhood, sisterhood. और वो केवल और केवल उनके मन में जो है किसी प्रकार का कलुषित विचार नहीं होता है। When फिर we उसके बाद हमको लग रहा है जहाँ जहाँ उनसे एक प्रकार से जो गलतियाँ हमको जो कर देते हैं, their nation, जब स्कूल भेजते हैं उस समय वहाँ बताते हैं कि मेरा धर्म, मेरा राष्ट्र, उसका धर्म और मेरा धर्म, या फिर ये जाति, दूसरी जाति, धर्म, इसके बारे में हम बातें करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। oneness of 7 billion human तो हमारी कोशिश यही होना चाहिए कि जो 7 अरब के आसपास लोग हैं वो एकता हो। nation, what religion, say, तो क्या राष्ट्र है, क्या समाज है, क्या देश है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यही होना चाहिए कि 7 अरब के आसपास लोग हैं वो सभी एक जैसे हैं। include education about inner peace. तो इसलिए जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें ये शिक्षा देनी चाहिए कि आंतरिक सुख कैसे आए, शांति कैसे आए। तो मैंने भी कहा कि अच्छा एक मन बनना चाहिए। According Indian tradition, तो भारतीय परंपरा जो भी आप देख लें तो जो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष की व्यवस्था है, तो उसमें कोई धर्म की बात नहीं होती है। उसमें बिना धर्म को आप पकड़े या टच किए आप एक किस प्रकार से अच्छा परिवार को बना सकते हैं, समृद्ध परिवार, सुखद परिवार कैसे बना सकते हैं, ये व्यवस्था है भारतीय परंपरा में है। tradition which help to और फिर कोई धर्म परंपरा कोई ऐसी है जो इसमें मदद करती है तो उसको हमें अपनाना चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष भाव होना चाहिए। इसके आधार पर हम कार्य कर सकते हैं। so most of problem which we are facing, तो ज़्यादातर जो समस्या हैं वो except you see global warming, जिसके अलावा जैसे कि आप वैश्विक जो तापक्रम की जो पर्यावरण की समस्या है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे द्वारा तो our own कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। हमने तो इसको बहुत ज़्यादा तो इसमें नहीं बनाया, लेकिन और इसके अलावा जो समस्याएं हैं वो मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं। they basically nobody want a problem. और तो जाके जहाँ तक आप देखें, उसके मूलतः देखें, कोई ऐसा नहीं है कि कहता होगा मुझे जो समस्याएं पैदा हों, लेकिन जो हमारा जो मन है, जो विनाशकारी भावनाएं हैं, Destructive emotion, तो इनकी वजह समस्याएं होती हैं। तो इनको हमें कम करना चाहिए। अगर कम करोगे तो निश्चित रूप से एक दिन विश्व में शांति आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मेरा विचार है। तो शिक्षा है वो एक प्रकार से की फैक्टर है, मूल मंत्र Our है। next question comes from David Schulman, professor तो of अगला Sanskrit क्वेश्चन and डेविड English सुलेमन, प्रोफेसर ऑफ संस्कृत एंड इंडियाना स्टडीज, हिब्रू यूनिवर्सिटी जेरूसलम से हैं। तो इजरायली पीस एक्टिविस्ट हैं, चेयरमैन जो आइंस्टाइन फोरम उसके भी सदस्य हैं। Your Holiness, तो thank you for being इनका with तो us. इनका मेरा ये कह रहे हैं कि मेरा कुछ प्रश्न है कि My question is, तो मेरे से आप Socrates, the Greek philosophers, जैसे कि जो सुकरात थे उन्होंने कहा था उनका किसी के अंदर कोई बुराई नहीं होती है, किसी के अंदर बुराई नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं क्या? is there a human urge to self-destruction? Could you tell us about the Buddhist theory of evil? I agree. As I mentioned earlier, basic human nature, तो मैं इससे आपकी जो कह रहे हैं उससे सहमत हूँ कि जो मनुष्य की एक हैबिट होती है, आदत होती है, वो करुणामयी होती है। born, we कि receive maximum affection from our जैसा ही हम पैदा होते हैं तो अपनी माँ से हमें ज़्यादातर प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है। basic human nature, more compassionate. As और जो हमारी आदत है और जो modern वो एक प्रकार से करुणामयी होती है। knowledge, peace of mind is very important. तो मन की जो शांति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now, through education, तो इसको हम शिक्षा के द्वारा इसको और बढ़ाया जा सकता है। emphasis more
about warm-heartedness. और इसके द्वारा जो हमारा सहृदय है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। Close with basic human nature. तो जो मनुष्य का मूल एक आदत होती है, प्रकृति होती है, उसके हम और नज़दीक आ सकते हैं। I'm Buddhist monk. जैसे कि मैं एक बुद्धिस्ट भिक्षु हूँ, बौद्ध भिक्षु हूँ। मैंने बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया है। One idea, basic nature of human तो being उनसे मैंने यही प्राप्त किया है कि जो मनुष्यों की जो आदत है या प्रकृति है तो वो शुद्ध होती है। we call Buddha nature. तो उसी को हम तथागत गर्भ कहते हैं, Buddha nature. बुद्ध गर्भ कहते हैं। और हम सब में यही होता है, तथागत गर्भ कहते हैं। हम सभी में है, सब प्राणियों में That is the तथागत गर्भ basis है। of the theory or belief we can eventually through training तो इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि अपने मन को very mind प्यूरिफाई करके, Buddha's mind. शुद्ध करके So we हम call एक प्रकार से बुद्ध बन सकते हैं। तो हम सब के अंदर है, बुद्ध प्रकृति है, तथागत गर्भ है। So Buddha himself, you see, made very clear. और भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि जितने भी नकारात्मक विचार हैं, जो क्लेश हैं, वो केवल ऊपरी हैं। Nature of mind is pure. और गहराई में अगर देखें, जो मन है, मन की प्रकृति एक स्पष्ट होती है। तो जो भी जो ऊपरी सतही प्रकार से जो हमारे क्लेश हैं उनको नष्ट कर सकते हैं Or should be removed. और इनको हटाया जा सकता है। Okay. 조디 말해. 제가 또 디버스 कंडीशन As I mentioned तो earlier, इनके दूसरे प्रश्न का यही भाग है कि पाप किसे कहा जाता है। the negative action or sin तो जहाँ तक नकारात्मक विचार हो या पाप हो depend on our own motivation. तो ये हमारे जो External activities जो भावना है उस पर निर्भर out of करती है। compassion. You see some kind of wrath. तो कभी कभी हम जो है करुणा से रहित होकर के एक प्रकार से बहुत ही खराब कर्म कर देते हैं, कर्म करते हैं। Motivation is compassion. और अगर भले ही आप रूप कैसा भी हो, कर्म रौद्र रूप भले ही क्यों न हो, अगर अंदर करुणा है तो वो खराब नहीं होते हैं। तो आपने तंत्र परंपरा में देखा होगा, बहुत सारे जो देवी देवताओं को देखा होगा, वो बहुत सारे एक प्रकार से रौद्र रूप में होते हैं। तो उनसे लगता है कि बड़े ही पापी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका इनका एक अर्थ है कि जीवधारियों को मदद करने के लिए होता है। Need a little bit तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने घर में ही देखें कि किसी के प्रति आपको रौद्र रूप अपनाना पड़ता है जिससे कि उसकी आदतें ठीक हो जाएं। we utilize fear तो कभी कभी क्रोध का भी, डर का भी उपयोग करना पड़ता है, or negative actions. तो जिससे कि हमारे जो नकारात्मक कर्म हैं वो रुक जाएं। The sinful ultimately motivation. तो जो भी आपके जो पाप हैं वो आपकी मोटिवेशन पर निर्भर करते हैं। Negative emotion and including teaching. तो यहाँ तक आप अगर नकारात्मक विचारधारा को लेकर के अगर धर्म प्रवचन भी करते हो तो वो भी एक नकारात्मक होंगे, नेगेटिव होंगी। तो इसलिए जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो हमारे मोटिवेशन पर निर्भर करते हैं। Verbal action, physical action, तो उसके अलावा जो हमारे कायिक और जो वाचिक कर्म हैं इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहे। any sort of negative motivation, anger, jealousy, तो हमारी चाहे घृणा हो या फिर क्रोध हो, यहाँ पर जो यहाँ तक आपको ऐसा मन लेकर के अगर उपदेश कर रहे हैं, धर्म उपदेश दे रहे हैं, तो वो पाप होगा। so like me on उदाहरण के रूप में जैसे कि मैं किसी बहुत ऊंचे मंच पे बैठ जाऊं, आसन पे बैठ जाऊं thinking my own name, और अपने नाम के बारे में सोचूं और पैसे के बारे में सोचूं, दान के बारे में सोचूं, become इस उद्देश्य को बना करके अगर मैं प्रवचन दूं तो जो मैं उपदेश दे रहा हूं, प्रवचन दे रहा हूं, तो उपदेश की जगह वो पाप बन जाएगा। तो ये हमारी जो मोटिवेशन है उस पर निर्भर करेगा। or compassion. तो जो भी आप कार्य को करते हैं, करुणा से रहित करते हैं,
तो वो फिर नकारात्मक होता है। इसके सहित करते हैं तो सकारात्मक होगा। Dharma actually negative, sinful. तो इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। Okay, thank you, Your Holiness. I will be asking the next question. तो मैं अब अगला प्रश्न पूछ रही हूँ। Buddhism seems very scientific and तो you जो बौद्ध emphasize धर्म है वो बहुत ही वैज्ञानिक, the use of logic, एक प्रकार से वैज्ञानिक धर्म है, जैसा कि आपने कहा है। also seems very much like modern physics in the way that it और जिसपे कि जो मॉडर्न फिजिक्स है, प्रति समुद्पात है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से के आधार पर भी कहा जाता है, physics describes, especially quantum physics. तो जिसमें क्वांटम फिजिक्स के भी बारे में बात करते हैं। Physicists who study reality, तो जो भौतिक विज्ञान their के होते study हैं does not वो cultivate एक प्रकार से सत्यता को तो अध्ययन करते हैं, लेकिन वो करुणा के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं और उससे दुखों का नष्ट नहीं होता है। तो मेरा क्वेश्चन यही है, ultimate reality. जो बौद्ध धर्म के अनुसार प्रति समुद्पाद का जो सिद्धांत है, तो इसके साथ साथ करुणा क्यों उत्पन्न होती है, जबकि विज्ञान में ऐसा नहीं हो सकता। How to promote compassion, तो क्या जो विज्ञान है उसको बौद्ध धर्म को सीखना चाहिए कि वास्तविकता के बारे में सीखना चाहिए, सत्यता के बारे में जानना चाहिए, या फिर ये विज्ञान और बौद्ध धर्म अलग अलग हैं? In Buddhist tradition, although all major religion, you see, the main message is message of love. तो मैंने पूर्व में भी कहा कि जो भी परंपराएं हैं उन सभी में का जो संदेश होता है वो मुख्य रूप से प्रेम होता है, करुणा होती है। Karuna. और बौद्ध धर्म में करुणा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। Then, you see, the opposite or counterforce of compassion, तो जहाँ करुणा के विपरीत अगर बात करें तो वो क्रोध होता है। the deeper level, counterforce of anger is when we develop anger, तो जब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है appears तो उस समय जिन चीज़ों को देखते हैं, जिस चीज़ को पर हम जो क्रोध करते हैं, तो वो लगता है वो स्वतंत्र है, वो स्वतः सिद्ध है। anger. तो उसके वजह से और ज़्यादा हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगता है। Buddhist tradition, one way try to develop a karuna, compassion, and meantime try to develop sort of certain philosophical views. तो एक तरफ तो बौद्ध धर्म के अनुसार आप देखें कि करुणा उत्पन्न की जाती है और उसके साथ साथ जो दार्शनिक क्षेत्र भी बनता है कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं तो वो जैसा हम देख रहे हैं वैसे ही उनकी सत्ता नहीं होती है। और क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जो वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं वैसी उनकी सत्ता नहीं होती है, वैसी उनकी सत्यता नहीं होती है। तो जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे तो जितना ज़्यादा आप सोचते जाएंगे तो सबसे पहले तो ये एक प्रकार से हमारे मन के द्वारा बने हुए ऐसा आभास होता है। तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी जो जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं और जो वास्तविकता है उसमें अंतर होता है। और हमारे जो क्लेश हैं या जो समस्याएं हैं ज़्यादातर केवल दिखाके के रूप बाहरी जो जिन चीज़ों को देख रहे हैं उसके वजह से आते हैं, सत्य मान बैठते हैं। इस वजह से हमारे अंदर क्लेश पैदा होते हैं। और बौद्ध धर्म के अनुसार यही कहा जाता है कि जिस चीज़ को आप देख रहे हैं वैसा वो होता नहीं है, स्वभाव से सिद्ध नहीं होता है। Or something absolute, which easily develop grasping. In reality, nothing exists as appears. और वास्तव में बौद्ध धर्म के अनुसार जिन चीज़ों को आप देखते हैं वैसे स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं, हालांकि हमें दिखाई देते हैं, लगती हैं। जब आप इनको परीक्षण करोगे तब आप देखोगे कि कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है,
कोई भी चीज़ स्वभाव से सिद्ध नहीं है। The Buddhist terminology is interdependency. तो आप इसको बौद्ध धर्म के अनुसार प्रतीत समुद्पाद को देख सकते हैं, उसके अनुसार से भी इसकी व्याख्या की गई है। Also the interdependent. The और हर चीज़ बौद्ध धर्म के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर है। आप दुश्मन को भी देख लो, जिसको आप शत्रु मानते हैं, जिसको आप शत्रु मानते हैं, वो भी आपके मानसिक एक प्रकार से मन के द्वारा निर्मित है। तो आज आप जिसको शत्रु मानते हो, तो हो सकता है कल जा कर के वो आपका अच्छा मित्र बन जाए। व्यक्ति वही रहता है। now today is your best friend. तो आज आपका अच्छा मित्र जो है, हो सकता है कल आपका दुश्मन बन जाए। तो ऐसी भी संभावना है। तो दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। Mental projection. ये हमारे मानसिक स्तर हैं, मन के द्वारा चीज़ें बन जाती हैं और एक दूसरे पर आश्रित भी होते हैं, इनकी वजह भी होती है। Philosophical view, you see, things does not exist. तो दार्शनिक या दर्शन के हिसाब से हम देखें तो कोई भी चीज़ स्वतंत्र नहीं होती है। सब चीज़ एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। In Buddhism, in general, and particularly like Nagarjuna, as I mentioned earlier, the तो Chinese आपने जैसे कि नागार्जुन के बारे में मैंने कहा, और चीनी लोग इसको लुंगसू पूसा कहते हैं। so he emphasizes तो उन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो प्रति समुत्पन्न हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। nothing should also exist as appears. और जैसा आप देख रहे हैं वैसा कोई भी चीज़ वास्तविकता में नहीं होती है। Objectively independent exist. और कोई भी चीज़ जो आप देख रहे हैं वो स्वतंत्र नहीं है। यही सत्यता है, यही वास्तविकता है। हर चीज़ प्रति समुत्पन्न है, आश्रित है। यही परम सत्य है। So also the direct opposite to grasping things independently exist. तो जब आप देखते हैं कि जो चीज़ें हैं Exist. एक प्रकार से स्वतंत्र सत्ता में है, ऐसा हमें आभास होता है। Understanding तो इसका everything, एक संयोजन के रूप में समझना चाहिए many different factors. कि जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वे बहुत सारे इसके कारक होते हैं, हेतु होते हैं, तब जा कर के अस्तित्व में आते हैं। तो जहाँ तक शत्रु की भी बात करें तो वो हमारे द्वारा, ये मन के द्वारा निर्मित हैं। इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती है। Aspect, practice or familiarize the compassion. तो दूसरी बात कि जो करुणा है उसके प्रति हमें जानकारी होनी चाहिए। Nothing तो independent. प्रज्ञा के अनुसार तो कोई भी स्वतंत्र रूप से सत्ता में नहीं होता है। Also the method side और जहाँ उपाय के बारे में बात करें हैं emphasize तो हमें जितने भी जीवधारी हैं वो हमारे भाई बहन के समान हैं। तो ये उपाय और प्रज्ञा, इन दोनों को साथ रखना चाहिए। is the as a very powerful sort of और ये बहुत ही ये एक प्रकार के शक्तिशाली तरीके हैं जिनके द्वारा हमारे नकारात्मक विचार कम हो सकते हैं, घट सकते हैं। modern scientists also now modern scientists now begin to pay more attention और आज के जो वैज्ञानिक हैं inner feeling. तो हमारे जो आंतरिक भावनाएं हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, विचार कर रहे हैं। So now here you see according to my own experience और मैं अपने अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूँ we can do. कि हम बहुत सारी इसमें शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। The also Nalanda tradition, the very much reasoning और नालंदा परंपरा में जो कि जो तर्क की व्यवस्था रही है, आंतरिक सुख की बातें जो की गई हैं, तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जो आधुनिक विज्ञान है, वैज्ञानिक हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। Yes, certainly, as I mentioned earlier, now some scientists already you see mentioning we are social animal. Any social animal, you see, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था factor which कि वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि हमारी जो आदत है वो कारुणिक है, ऐसा मानने लगे हैं। ये तो बौद्ध धर्म के अनुसार पहले से ही व्यवस्था है। time sort of changing. तो अभी समय बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है।
also the facility. तो अभी हमारे पास बहुत सारे व्यवस्था है, सुविधाएं हैं, हम लोग बातचीत कर सकते हैं। More or less isolate. अतीत के समय में तो एक दूसरे से दूर रहते थे, तो ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं थी। अब हम लोग ज़्यादा नज़दीकी हैं, ज़्यादा पास में हैं, ज़्यादा अवसर भी हैं, तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं। My own lifetime. तो मैंने अपने जीवन के दौरान ही पिछले कोई लगभग 30-40 वर्षों से Sort of serious discussion. तो मैं वैज्ञानिक लोगों के साथ साथ एक प्रकार से गंभीरता से वार्ता करता आया हूँ और मैंने उनसे सीखा भी है। So now, in our monastic institution, mainly in South India, तो हमारे जो बौद्ध मठ हैं और ख़ासकर जो पश्चात जो दक्षिण भारत में हैं, जहाँ पर दसों हज़ारों की संख्या में भिक्षु लोग अध्ययन करते हैं, introduce तो उनसे मैंने आह्वान किया है कि जो हमारी जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको विज्ञान भी पढ़ने चाहिए, इसका भी अध्ययन करना चाहिए। college. तो हमारा एक जो विश्वविद्यालय है, ये बहुत बड़ा संस्थान है। Some small center, तो वहाँ पर एक science. विज्ञान के शोध के लिए एक प्रकार से संकाय का निर्माण किया है, एक डिपार्टमेंट बना है। Like that. तो इस प्रकार से हम लोग अध्ययन करवा रहे हैं। 세리베 ngogam 세리베 가. 덴데 ngogam 세리베도 심주치 덴데기 남샤 심바이네 닝지게야 콘수 배주 땅땅 땅도르 세리 Dentist the lives on so. Oh, interdependence. Oh, 세리바도 있어 as I mentioned earlier, you see two parts. One, practice compassion. तो पूर्व में भी कहा कि एक जो हमारा इसका भाग एक जो अभ्यास का पक्ष होना चाहिए, दूसरा प्रज्ञा का पक्ष होना चाहिए। So-called enemy, तो जिसको हम शत्रु मानते हैं friend. या फिर मित्र जिसे कहते हैं, These grasping emotion very much depend on another sort of part of mind तो ये हमारे मन के पर आधारित होता है। independently exist. तो इसको Now that मित्र शत्रु तभी मानते हैं जब लगता है कि वो स्वतंत्र सत्ता में होता है। anything, as I already mentioned, anything you see interdependent. तो जो भी चीज़ें So जो एक दूसरे पर आश्रित होंगी तो उसको प्रज्ञा के पक्ष में रखना चाहिए और एक प्रकार से उपाय के रूप में रखना चाहिए। तो इन दोनों को प्रज्ञा उपाय को जब साथ लेंगे तो हमारी नकारात्मक भावनाओं में कमी आएगी। okay, but you know, the method side, I think common. तो जहाँ तक उपाय के रूप में बातें करें वो सभी लोगों के समान होना चाहिए, जितने भी धार्मिक लोग हैं। Side, there are और वो प्रज्ञा के बारे में प्रज्ञा पक्ष में कहें तो उसमें अलग अलग हो जाती हैं। Okay, thank you very much. Your Okay. Holiness. Our next question is from Shayam. तो अगला प्रश्न वो पुलरी करेंट ट्रांसटेंट फेलो हैं, तो वो आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। तो परम पावन जी आपसे राशि दिले, तो आप अक्सर यही कहा है कि हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, तो कर्म पर इसको कैसे कर सकते हैं। जब मेरा प्रश्न यही आता है कि जब आप वैज्ञानिकों के साथ साथ बातचीत करते हैं तो समय जब आप कर्म और जो मानसिक कर्म फल हैं तो उनके साथ साथ क्या संबंध रहा, क्या सीखा है, तो भविष्य में भी आकर के और ये क्या एक वैज्ञानिक तरीके से कार्य कर सकता है कि नहीं। karma means action. तो जहाँ तक कर्म की बात करें तो कर्म का किसी कार्य को करना, किसी कार्य को करना ही कर्म कहलाता है। Momentarily, और जो कर्म होता है वो हर क्षण परिवर्तनशील है, वो नष्ट होता चला जाता है। cease. Action, momentarily. तो जैसे ही हमने किसी कार्य को किया वो अगले ही क्षण वो नष्ट होता जाता है। But then, during verbal action, और फिर physical action, जो कर्म भी है हमारे तीन प्रकार से होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। make some kind of imprint तो उसकी कुछ जो छाप है वो छूट जाती in है, our mind. हमारे मन पर उसकी छाप छूट जाती है। So,
you see, that carry life after life. और ये जो छाप है जीवन दर जीवन चलती रहती है, यहाँ तक कि कुछ कल्पों तक भी ये रहते हैं, हमारे मन में इसकी छाप छूट जाती है। Of karma, action, you see, some kind of imprint in our mind. So even eons, now these, you see, remain there. So even, I think we can say, reach Buddhahood. Also, you see, तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ तक बुद्धत्व की प्राप्ति अगर करनी हो तो वो भी सकारात्मक विचारों के द्वारा ही संभव है। gradually all negative or emotion reduce. और जैसे जैसे हमारे जो नकारात्मक विचार नष्ट हो जाएंगे, सकारात्मक विचार जितने बढ़ेंगे, We become फिर उसके बाद अंत में जाके जिसने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया, क्लेश सब नष्ट हो गए, बाद में वही व्यक्ति बुद्ध बन जाता है। karma, action. तो इसको ही कर्म या फिर एक्शन जो भी आप कहें उसका सिद्धांत होता है। You see, more discussion. तो जितना ज़्यादा आप वैज्ञानिक के साथ में तर्क करेंगे, शास्त्रार्थ I करेंगे, personally feel और जैसा मैं भी मानता हूँ conviction. और मैं भी अपने अनुभव के तौर पर कह सकता हूँ, और नालंदा परंपरा के प्रति में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से Those masters, they thoroughly investigate, and ये then जो पूर्व के जो भी हमारे आचार्य हुए हैं उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया, today परीक्षण किया, ग्रंथों की रचना की। तो उन्हीं को आधार बनाकर के जब मैं विभिन्न including scientists, जब विद्वानों से जब चर्चा करता हूँ, वैज्ञानिक लोगों से जब चर्चा करता हूँ, matter like world. तो जैसे छोटी छोटी बातें, कुछ विश्व की जो दुनिया है, कोई कहते हैं कि दुनिया एक जो चपटी है, तो मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, नकारता हूँ। तो मुँह जो चंद्रमा और सूर्य जो है वो समान इनकी एक समानता के रूप में दर्शाते हैं, तो मैं कहता हूँ ये अर्थहीन है, मैं खुद इसको नकार देता हूँ। The Chandrakirti now mentioned. और चंद्रकीर्ति ने भी, You see, he believed, you see, very subtle level of philosophical view. तो चंद्रकीर्ति ने बहुत ही गंभीरता से जो व्याख्या की है, Indian master, तो उन्होंने कुछ भारतीय जो विद्वान हैं he rejected these sort of thing. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो इनको रिजेक्ट किया हुआ है, इनको नहीं माना है। He dismissed these Indian master, some of these Indian master. तो वो कहते हैं कि जो पूर्व के ऐसे आचार्यों ने कहा है तो मैं उनको नकारता हूँ, ऐसा भी चंद्रकीर्ति कहते हैं। I am a student of Chandrakirti. तो मैं भी चंद्रकीर्ति का I believe Chandrakirti's जो word. So he विचारधारा वाला हूँ, मानता हूँ, तो मैं उनके शब्दों को मानता हूँ। तो उन्होंने कुछ जो सीनियर भारतीय जो विद्वान थे उनके कुछ एक विचारधाराओं को नकारा है। you see, we can reject. तो आज के समय में आप देख सकते हैं जो आप परीक्षण जिनको कर सकें, शोध उनका कर सकें, तो उनको नकारने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप वो फिट नहीं बैठते हैं, आज के समय के लिए उचित नहीं है, तो उनको नकारने में कोई बुराई नहीं है, और उस पर शोध करिए, ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत है। Genuine scientist, you see, also we can discuss thoroughly, so we can go continuously. तो हमें और ज़्यादा इस पर चर्चा करना चाहिए, शोध करना चाहिए। Okay, then 딱 가서 마음밭에서 천리를 남는 드시, then 디송 가면 돼. Okay, now next. अगला प्रश्न कैरी Thank you. हैरिसन, प्रोफेसर ऑफ We have इंग्लिश, 2 more questions. ब्रुकलिन The कॉलेज से। next one is from Carrie Harrison, professor of English at Brooklyn College. तो ये कह रहे हैं कि आज हम अमेरिका में रह रहे हैं, बहुत ही जो समाज यहाँ का है बहुत ही दुख भरा है, एक प्रकार से बटा हुआ है। तो हम सभी को करुणा की आवश्यकता है। तो मेरा क्वेश्चन यही है, तो आपका जो इसके प्रति जो हम क्या अभ्यास करें, अपने मन को कैसे शांत करें, इसके लिए आपका क्या एडवाइस है, क्या सलाह है? of a practical way
to apply जो एक सकारात्मक हो, प्रैक्टिकल हो। to a bitterly angry nation. Oh, as I mentioned earlier, now these days, I expressing in education field, we should तो आजकल मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है how to तो उसमें peace of mind. ये विचार रखना चाहिए, देनी शिक्षा देनी चाहिए कि किस प्रकार के हम मानसिक सुख को प्राप्त कर सकें, किस प्रकार से जो हमारी जो प्रतिस्पर्धा Kinds. उसको कम कर सकें। तो जो प्रतिस्पर्धा दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। We top. तो सकारात्मक जिसमें आप सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं और इसको प्राप्त करने के बाद आप बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहते हैं। Since तो इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, sense of competition is positive. तो ये अच्छा है। आप लोगों का हित रख करके एक कंपटीशन या एक प्रतिस्पर्धा करते हैं। और दूसरी प्रकार की कंपटीशन ऐसी होती है कि मैं सर्वोच्च बनना चाहता हूँ, दूसरों को नष्ट करूँगा, बदला लूँगा। इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा वो खराब होती है, वो उचित नहीं होती है। I always say emphasis the importance of concept of oneness. तो मैंने पहले भी कहा है कि जो 7 अरब के आसपास लोग हैं वो एक जैसे एकता उनमें होने चाहिए, क्योंकि हमको साथ साथ रहना है, साथ साथ जीना है। Or say the sense of brotherhood, sisterhood. और इसके साथ साथ यही विचार हो, जो भाई बहन की जो भावना है वो आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। So now, as I mentioned earlier, now scientists also now have the sort of view. We are social animal. We all have the, ultimately we have the sense of respect other. Then, through research or through practical, or self-centered. और जहाँ तक हमारी जो विचारधारा है, बहुत ज़्यादा संकुचित विचारधारा रहती है, और जो भी संकुचित विचारधारा के हैं उनके अंदर उतना ही ज़्यादा एक प्रकार से कष्ट होता है, परेशानियाँ होती हैं। So-called your enemy. तो जिसको आप शत्रु कहते हैं, तो कभी कभी आपका जो है वही एक अच्छा मित्र बन जाता है। Shantideva, और आचार्य शांतिदेव ने कहा है your enemy is best और teacher. कहा है कि जो आपका शत्रु है वो आपका सबसे अच्छा मित्र है। उससे आप बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अनुभवों को सीख सकते हैं, जैसे क्षमा को सीख सकते हैं, धैर्य का अभ्यास सीख सकते हैं। Genuine loving kindness towards your enemy. तो अगर आप अपने शत्रु के प्रति भी अगर प्रेम करते हो, करुणा रखते हो, तो वो वास्तविक प्रेम और करुणा होती है। Towards your friend. तो अगर आप अपने मित्र के Much mixed. या नज़दीकी के प्रति आप प्रेम और करुणा करते हो, तो हो सकता है उसके उसमें आपका लगाव हो, उसमें एक तृष्णा जुड़ी हुई हो। Some feeling of sort of kindness, and you should think your enemy. तो जब आप करुणा को करना चाहते हो तो आप शत्रु के बारे में सोचो, That's genuine तो निश्चित रूप से वो अच्छी सोच होगी। kindness feeling towards your friend. और अगर आप मित्र के बारे में अगर सोचते हैं, करुणा अगर करते, तो हो सकता है उसमें तृष्णा जुड़ी हुई हो, लगाव जुड़ा हुआ हो। Therefore, as I mentioned earlier, Shantideva mentioned, तो जैसा कि मैंने अभी कहा है कि आचार्य शांतिदेव ने भी कहा है कि जो शत्रु है वो आपका सबसे अच्छा मित्र होता है। Thank you. thank you. Thank you. Thank you. Our final question. तो इस आज का अंतिम प्रश्न है तो नारी सकले पाव से है, और जो प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री यूरोपियन यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग से हैं, और पूर्व आइंस्टाइन के एक मित्र हैं, आइंस्टाइन फेलो जो संस्था में उसके सदस्य हैं। क्या किसी बच्चे को इस दुनिया में दुख भरा दुनिया में छोड़ देना चाहिए? दूसरी तरफ
दूसरी तरफ आप पर्यावरण को देख लें और जो अति ज़्यादा जो आबादी की समस्या है उसकी तरफ देखें तो लोग परेशान हैं, हर तरफ से परेशान हैं। तो ऐसी अवस्था में किसी बच्चों को छोड़ दें। और उसके अलावा अगर कोई बच्चा हो जो अच्छी परिस्थिति में जिए, अच्छे परिवार में जिए, उसका अच्छा पर्यावरण हो, तो फिर इसके हिसाब से मेरा प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के अनुसार करुणा का अगर अभ्यास करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? Loving kindness or compassion is a all major religious real तो message. मैं पहले ही कह चुका हूँ कि करुणा का जहाँ तक बात करूँ तो वो सभी धर्मों के मूल मंत्र हैं, सभी इसके बारे में कहते हैं, सभी Compassionate mind, the human being, physically or since mentally very healthy, calm. So physically also you see get benefit. Always you say, including your heart beating very slow. There's too much anxiety, too much anger. You see, physical level also very harmful. तो जहाँ तक क्रोध की अगर बात करें तो क्रोध अगर जो कहता है उसको परेशानियाँ होती हैं, But mentally, दिक्कतें आती हैं, तो डॉक्टर भी अक्सर यही कहते हैं कि आपको आराम करना चाहिए। तो आराम करने का मतलब ये नहीं है कि आप शारीरिक जो सुख है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो आपका मन भी शांत हो, उससे आपको मन को भी सुख मिले। mentally, तो रेस्ट करने की मतलब है मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आपको आराम की आवश्यकता है, ऐसा विचार होता है, कहते हैं। practice of the compassion, forgiveness, these, although these come from religious text, but we should consider these are academic subject, not religious subject. For example, some you see Buddhist text, a lot of sort of explanation these things for next life or eventually for Buddhahood. That's exclusively for Buddhist. तो जहाँ तक पूर्व जन्म की बातें, पर जन्म की बातें, बुद्धत्व की बातें, ये जो बातें हैं वो हो सकता है खासकर एक बौद्ध के लिए हों, लेकिन इसके अलावा जो हमारी सुख सुविधाओं की चित्त की मन की बातें जो हैं वो एक जो हमारे एकेडमिक स्तर पे होना चाहिए, हमारी शिक्षा है उसमें होना चाहिए। तो 8वीं शताब्दी के एक बहुत बड़े विद्वान साधक तो आचार्य शांतिदेव, तो उन्होंने अपनी जो किताब है जो बोधचर्या अवतार में कहा है, तो हालांकि उन्होंने कई एक किताबों की रचना की है, तो एक बोधचर्या अवतार about 10 chapters. तो उसमें 10 अध्याय हैं। 6th chapter, उस जो 10 अध्याय हैं उनमें से जो 6ठा अध्याय है उसमें खास करके चर्चा की जा रही है कि हमारे जो नकारात्मक विचार हैं, जो क्लेश हैं, तो क्लेशों को कैसे नष्ट कर सकें, अपने क्रोध को कैसे नष्ट कर सकें, उसके बारे में बात करते हैं। तो 8वें जो अध्याय है उसमें देखें जब हमारा जो स्वार्थी चित्त होता है तो उस समय परहित की बात कैसे कर सकें, दूसरों के साथ मदद कैसे कर सकें। really, whether believer or non-believer, whether तो 6वां और 8वां अध्याय है, doesn't matter. वो चाहे बौद्ध हो, अबौद्ध हो, जो भी परंपरा को मानता हो, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। और उसमें यही कहा जाता है कि हमारे जो नकारात्मक विचार है उसको नष्ट कैसे कर सकें, और स्वार्थी चित्त की वजह से ही हमारे आंतरिक जो परेशानियां वो पैदा होती हैं। Anger. और फिर 6वें में यही कहा जाता है कि जो क्रोध है वो कितना खतरनाक है। 8वें में कहा जाता है कि 8वें अध्याय में कि जो परहित का चित्त है वो कितना लाभदायक है। Since I received तो जब से मैंने इसका transmission, उपदेश प्राप्त किया you see this book, I really तो मैं इस और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि हमारी जो विचारधारा थी, सोच विचार थी, वो उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। have some
sort of तो आज के समय में जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं इसका अध्ययन करता हूँ। combined with the Krasa, the daughter. उसके अलावा जो चंद्र कीर्ति के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उनको भी मैं साथ साथ देखता हूँ, पढ़ता हूँ। तो इनके जो ग्रंथ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इससे हमारे मेरा जो मन है उसमें परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। तो ऐसा नहीं कि मैं पूर्व जन्म अगले जन्म की बातें करूं, कहीं दूसरे की बातें करूं, तो केवल यही विचार करता हूं कि अपने मन को कैसे शांत रख सकूं। There nangshu ne chamzi ninji lagdar tang drewe. So firstly, you see, ka kodo demi dugu ka 강에 잠들나 강에 마부 지에다 강 단도 부 대화 시대 수수 기회 있나 아니야 이 강에 냄배잖아 진짜 무슨 말이래 남준이 또 따당도 관계야. yes, now there's one problem. तो दूसरी यहाँ जो क्वेश्चन करना ने कहा कि जो हमारी आबादी है वो भी एक प्रकार से समस्या है। So this we should look more realistic way. तो इनके बारे में हमें सोचना चाहिए, इसके बारे में जो भी समस्या है उसके बारे में अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए। Also the food and these things. तो इस पर ग्रह पर जो भोज्य पदार्थ हैं, खाने पाने की चीज़ें हैं, वो भी एक प्रकार से उतनी ही मात्रा में है। उसके अलावा जो आप देखें कि पर्यावरण Most of the river उसकी भी समस्या बड़ी है। तो आने वाले समय में बहुत सारी नदियां हैं वो भी सूख सकती हैं, खतरनाक स्थिति है। we have to think more holistic way. तो हमें एक अच्छी तरह से विचार करना चाहिए Human population. और मानवता के बारे में भी सोचना चाहिए। जन आबादी है उसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। Certain reason, and then also the more I think the future generation और आने वाली जो आबादी है, people come अगर बहुत ज़्यादा आबादी अगर होगी तो निश्चित रूप से out of sense उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। both control. तो इसलिए जो जीवन दर है उसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है और कारगर सिद्ध होगी अगर इसके बारे में विचार करते हैं। Related with thinking wider तो हमें एक जो समस्याएं हैं इनके बारे में गंभीरता से विचार करना है। आप सबको विचार करने की ज़रूरत है। more monk. तो मजाक के तो कहते हैं कि ज़्यादा भिक्षु बने, ज़्यादा नन बने तो हो सकता है कि जो आबादी कम हो सकती है। Thank you. Finished. And it is my honor to thank you, Your Holiness. तो परम पावन जी आपका धन्यवाद I करने के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। thanks to Amber Carpenter and तो Shyam, अंबर कॉम्परेटर और श्याम लूरी former and present Einstein Fellows. तो जो कि आइंस्टाइन संस्था के पूर्व I would सदस्य like हैं। to thank your tech team और आपकी जो टेक्नोलॉजी की जो टीम है उनको सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अनुवादों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसमें 13 अलग अलग भाषाओं के अनुवाद हो रहे हैं, वो साथ साथ अनुवाद कर रहे हैं। उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और परम पावन जी आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया है। Perhaps fortune will permit us to welcome you sometime here. तो भविष्य में भी यहाँ पर भी आपका स्वागत करने के लिए हम लोग आतुर हैं। Feel great honor. और मैं भी मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि कुछ संस्थान Have a connection with Einstein. जो कि आइंस्टाइन के साथ उनका संबंध रहा है, तो उनका मैं
एक प्रकार से अनुमोदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप मैं बहुत ही खुश हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Okay. Again, see you again. फिर कभी मुलाकात होगी, भविष्य में पुनः मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। My physical sort of visit Estonia, तो मैं जहाँ तक हूँ कि मैं शारीरिक रूप से एस्टोनिया कब पहुँचूँ, काफ़ी दूर है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, तो एक प्रकार से जो दूरी है वो ज़्यादा दूर नहीं रह जाती। हम लोग बातचीत कर सकते हैं, बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है। oh, 또 재민이 in Germany. Right. Thank you. Thank you, Your Holiness. Thank you. And especially आपका धन्यवाद। Deutschland. तो जर्मनी जो है डचलैंड कहा जाता है। Since my childhood, see, we do not make distinction Austria and Germany. तो मैं बचपन से जो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में बहुत ज़्यादा हम लोग अंतर नहीं कर पाते थे। Since my childhood, I developed very close, फिर उसके बाद जो बचपन से ही मेरे जो संबंध हैं one तो जर्मनी के साथ में रहे हैं, तो जो आके दो लोगों के साथ से बने हैं, and then आपसनादा, हारा, 70 years in Tibet. तो जो 7 वर्ष तिब्बत में रहे हैं, तो हारा English teacher. तो मेरे पहले अंग्रेजी के एक प्रकार से शिक्षक थे, उन्होंने मुझे अंग्रेजी सिखाई थी। और से teasing. तो हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ मजाक करते थे, हंसते खेलते थे। Mr. Hara, तो मिस्टर हारा English teacher. तो मेरे पहले अंग्रेजी के शिक्षक His रहे हैं। English broken. तो उनकी अंग्रेजी जो है ब्रोकन थी, टूटी फूटी थी, तो निश्चित रूप से जो उनका जो शिष्य होगा तो उसकी भी अंग्रेजी टूटी फूटी ही होगी। Thank you. Bye bye. तो इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। Mr. Hara, you see, till his last day, he always used to feel वो जहाँ तक हारा की बात करूँ तो उनके वो अपने अंतिम दिनों तक, अंतिम सांस तक वो तिब्बत के प्रति उनका दिल जो है बहुत ही अच्छा रहा है। And we have understood you despite Mr. Hara's teaching. So तो मैं आपकी जो हारा ने आपको जो अंग्रेजी सिखाई उसके माध्यम से मैं आपको